Yeah, so today, as I already told you, so we'll revise from unit 1, 2, and 3. Okay, we'll spend 3 lectures on the revision only, and after that, we'll discuss uh, maybe after your first test, practice test, we'll discuss those questions. Okay, so this is the planning for this week. Okay, so now again from zero, I will revising all this content. Okay, it will definitely help you for the midterm examinations. Okay, so we'll go one by one, and also we'll discuss few MCQs also. Okay, so let us start from the first unit. Is this screen visible? Is this visible proper? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first unit is what? क्या था आपका पहला यूनिट? पार्शियल डिफरेंशिएशन. ओके, सो आई होप कि आपने अभी ये टॉपिक रीड किया है. ओके, सो कैन यू जस्ट टेल मी वन बाय वन द टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट 1. यस, क्या आपका पहला टॉपिक? यस, बोलो. Differentiation of composite and explicit. हाँ, सो कंपोजिट आगे है. उससे पहले आपने स्टार्टिंग में आपने क्या लर्न किया था? व्हाट इज इन homogeneous function. रैंडम बोल रहे हो. ओके, फर्स्ट आई थिंक यू हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, मैं बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर ले रहा हूँ. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ z इज इक्वल टू so if z is equal to f of xyz, if this is your given function, then here you can calculate the partial derivative of z, or let us take u. Yeah, ठीक है, the partial derivative of z with respect to x, then partial derivative of z with respect to y, and partial derivative of z with respect to here notation change हो रहा है. Let me take u, so it will so instead of z, if I use u variable, then if u is a function of x, y, z, then I can calculate del by u by del by x, del by u by del by y, and del by u by del by z. Okay, and while calculating these derivatives, okay, when you differentiate u with respect to x, okay, which variables are constant? So here मैंने आपको ये ट्री डायग्राम से याद रखने के लिए बोला है. So here you can see here u is a function of 3 variable x, y, z. So when we differentiate u with respect to x, which variables are constant? Y, Z. y and z are constant. ठीक है, so again when we differentiate u with respect to y, x and z are constant. Other variables must be constant in case of partial derivative. ठीक है, so these are your first order derivatives. ठीक है, now can you tell me the second order derivatives, all possible second order derivatives or second order partial derivatives? These are the only possible first order derivatives. Am I correct? Yes, sir. हाँ, so can you tell me now second order derivative? सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट केलं का? Yes, it is already started. Yes, tell me quickly, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें. या बोलो. Tell me the possible. Del square u upon हाँ, del y square. dabba square u by U. dabba x square. Del by x, del Okay, then dabbas Students. are in waiting. Okay, Del by x, del by y. okay. Sure. Dabba square u by dabba x dabba y. Okay, and then dabba square u by dabba Y square. y square, dabba square u by चलो रैंडम लिख रहा हूँ, dabba z square, dabba square u by x y हो गया, y z ले सकते हो, dabba square u by x z भी ले सकते हो. ओके, these are the second order derivatives. करेक्ट है, u x square, u y square, u z square, then x y y z x z. ओके, is this correct now? Yes. ओके, हाँ, अभी ये आपको कैसे याद रखना है? देर आर मेनी नोटेशंस टू रिमेंबर दिस मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स. ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव. लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस. दिस आर कॉल्ड एज मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स 1, second, and this third, and there are different notation to denote this values. Okay, so can you tell me one notation? What is the other notation to denote this? Dabba square u by dabba x dabba y. What is the notation? So u x x y है ना. And what is your sequence? आप पहले किससे डिफरेंशिएट करते हो? X is ये हमेशा रिवर्स होता है, इसको रिवर्स से याद रखो. पहले y से करना है फिर x से करना है, ये रिवर्स होता है हमेशा. कहीं पे भी आप यहाँ से भी जाते हो तो पहले y से फिर x से. ठीक है, so this is the one more notation. For this you can write yz, and from this you can write xz.
ठीक है. इन जनरल दिस यू एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू यू वाई एक्स, इन जनरल, ठीक है. But if that function is continuous, its first order derivatives are continuous, then these two values are equal. Okay, or in our syllabus, in most of the example, or almost in all example, these two values are equal. इसलिए हम ज़्यादातर इसको इक्वली ट्रीट करके आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. क्योंकि सारे फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये पार्ट ही नहीं आता वहाँ पे जहाँ पे यू एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू यू वाई एक्स, ठीक है. सो दिस आर जस्ट नोटेशन दैट यू मस्ट, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, तो ये आप ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर भी सिंपल एमसीक्यूज आपको आगे आने वाले हैं. सो आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ओके, इसमें भी ठीक है. एंड आई थिंक आफ्टर दैट योर नेक्स्ट टॉपिक इज, ये बस चीज़ें आप याद रखो कि कैसे सीक्वेंस कैसे मतलब किस सीक्वेंस में आपको कैलकुलेट करना है. एंड आई थिंक योर सेकंड टॉपिक इज नाउ कंपोजिट फंक्शन. सो फॉर दैट लेट मी टेक अ नेक्स्ट स्लाइड. एंड योर सेकंड टॉपिक इज नाउ कंपोजिट फंक्शन. यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें. एक्चुअली देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स. या सो कंपोजिट फंक्शन में फर्स्ट लेट मी जस्ट राइट ऑल द पॉसिबल केसेस जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है. So what are those? Let take u is a function of x, and x is a function of u is a function of x and y. u is a function of x and y, ठीक है. So u is a function of x and y. X and y are the function of only one variable. Here is everything. Yeah. So u is a function of 2 variable x and y are the function of only one variable r. Okay. और इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बोलता हूँ. नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? u is a function of x y z. ठीक है. This x is a function of 2 variable r theta, y is a function of 2 variable r theta, z is a function of 2 variable r theta. ये एक केस है. एंड थर्ड केस इसका ही सब केस यू कैन ट्रीट दैट u is a function of say x and y, ठीक है. x is a function of say t, है ना, and y is a function of s. रैंडम ले रहा हूँ मैं, ओके, जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट. ओके, सो नाउ इन फर्स्ट केस विच डेरिवेटिव इज पॉसिबल फ्रॉम दिस फर्स्ट टी डायग्राम? क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप? Deb by u by deb r. इज इट करेक्ट? डेब बाय यू बाय डेब आर आने वाला है. थिंक ऑन दिस. Think on Deb by deb. at the end, this u is a function of only one No sir, variable. du by d. ठीक है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है. डाबा का मीनिंग बस ये होता है कि फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल. सो दिस इज मोर करेक्ट. du by dr. And can you tell me this definition? How you calculate this du by dr? Deb by u by deb x. Yes. When you go from u to x up to this step, okay, this u is a function of 2 variable. So here I have to take the partial derivative. So deb by u by deb x, and then dx by dx by dr. dx by dr. Very good, very good. Yeah. And next Deb by u by deb r. deb by u by y and dy by deb r. ठीक है. तो इस पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज है. ये इस पे जनरली वो एमसीक्यूज आते हैं आपको u इक्वल टू एफ ऑफ आर का, एंड r इज अ फंक्शन ऑफ दिस. ये सारे एमसीक्यूज इसी टॉपिक पे, x square y square z square. So at then u is a function of only one variable, okay, but in middle actually it is a function of 3 variable. तो मैंने 2 वेरिएबल का दिया, okay. You can treat मतलब आप एक और वेरिएबल लेके भी जा सकते हो. So वही ले लेता हूँ मैं, जो है एक और वेरिएबल में ले लेता हूँ, एंड देन इट्स अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. तो एक और स्टेप आ जाएगी, डेबा यू बाय डेबा जेड, एंड देन डी जेड विद रिस्पेक्ट टू डी आर. ठीक है. सो दिस इज फॉर फर्स्ट ट्री डायग्राम. ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट ट्री डायग्राम. और इस टाइप के एग्जांपल्स आपको वहाँ पे आने वाले, ये मैं शेयर करने वाला हूँ. सो राइट प्रॉपरली, कॉल इट एज फर्स्ट, कॉल इट एज सेकंड, कॉल इट एज थर्ड. ना सेकंड में बोलो कौन सा डेरिवेटिव पॉसिबल है, बोलो. du by deb by u by deb r. हाँ, Deb by u by so deb r. one is deb by u by deb r. This is possible. And second, Deb by u by deb by deb r. these are the only two derivatives that you can calculate using this second tree diagram. So can you tell me the formula quickly? First, u2 X. x, then
x2 X r, R then again u2 y, U2 Y y2 Y2 r, R then u2 z and z2 r. ठीक है. Similarly here also u2 x, x2 theta, then u2 y, y2 theta, correct, u2 z and z2 theta. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी सेकेंडरी डायग्राम. ठीक है, बस पाथ, जितने पाथ आते हैं उतने टर्म्स यहाँ पे आने वाले हैं. ठीक है. एंड नाउ इफ कम टू दिस लास्ट केस थर्ड. ओके, सो बोलो बोलो. हेलो सर. हाँ, क्या पॉसिबल है? आवाज फर्स्ट बोलो. एट द एंड दिस u इज फंक्शन ऑफ, एट द एंड दिस u इज फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल? एट द एंड जब आप x एंड y की जगह पे t यानी s का फंक्शन पुट करते हो तो u कौन से वेरिएबल में जाने वाला है? मैंने बस डायग्राम थोड़े अलग ड्रॉ किए तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है. ओके, हाँ, अगर मैं दोनों जगह पे ts लिख लेता हूं तो आपको समझ में आ जाता. अभी मुझे इस केस में बोलो u आपका कौन से वेरिएबल का फंक्शन होगा लास्ट में? u में t आने वाला है क्या? u फंक्शन में t आने वाला है क्या? अरे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. इफ आई टेक x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और अभी पुट करके मुझे बोलो u कौन से वेरिएबल का फंक्शन आने वाला है? हाँ, so there is a network problem again, so let me rejoin it. Huh. So can you tell me where we are? Yes, is the screen visible to everyone? यस सर. Okay, so where we are, कहाँ पे थे हम? सर थर्ड वाला खड़ा है सर. Okay, हाँ. So in this third example, u is a function of x and y, x is a function of t, y is a function of s. So at the end this u is function of how many variable? At the end this u is function of t and s. Okay, so here you can calculate dA by u by dA by t also. Here you can calculate dA by u by dA by. So tell me quickly, first formula. du by dx. Yes. Then dx by dt. dx by dt. dx by by dt. Okay, एक और टर्म आने वाला है यहाँ पे? No. नहीं आने वाला, because there is only one path from u to u to t, there is only one path. So this is your answer. Yeah. And now tell me for this. dA by u by dA by y dA by u by dy by ds. So this is all about composite. आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो कंपोजिट के दो क्वेश्चन है. एक शायद आपने जब जो इनिशियल लेक्चर्स थे आपके, है ना, फर्स्ट पीपीटी के ऊपर, उसमें एक कंपोजिट फंक्शन है, और जब मैंने लिया था लास्ट में उसमें भी एक कंपोजिट फंक्शन था. बट वो एक टाइम पे भी आप कंसिडर कर सकते हो. तो इतना ही है. ओके, फर्स्ट में आपने ये देखा है, फिर लास्ट के लेक्चर में हमने ये कवर किया था. सो बट एट देन यू कैन कंसिडर इट एज अ सिंगल टॉपिक. ओके, सो दिस इज योर सेकंड टॉपिक. पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कैसे करने, इट्स सिमिलर टू डेरिवेटिव, बट इन केस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, यू हैव टू ट्रीट दोज अदर वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. ठीक है. नाउ थर्ड टॉपिक इज जो इंपॉर्टेंट है, पहले वो ले लेता हूँ. योर थर्ड टॉपिक इज ऑयलर्स थ्योरम, और इसमें अभी भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है. ठीक है. सो इन दिस ऑयलर्स थ्योरम द important part is what? First of all we need to check whether this given function is homogeneous or not. Okay, तो पहले आपको क्या चेक करना है? Homogeneous function. Yes. So can anyone tell me what is the definition to check the homogeneous function? Yes. How you check? in the given function of three variables x, y, z, replace x with dx, y with dy, and z with dy. So just put x is equal to tx, y is equal to ty, and if contain one more variable and z with respect to tz. ठीक है. So this implies f of tx, मतलब x की जगह पे tx, y की जगह पे ty, z की जगह पे tz is equal to, अगर सारे टर्म्स में से कोई कॉमन आ रहा है, okay, and you will get that same function again
फिर से वही फंक्शन मिल रहा है, देन इट बिकम अ होमोजेनियस फंक्शन, अदरवाइज नॉट। ओके, सो देन योर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट, डिग्री n। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि डिग्री के बाद ही आप थ्योरम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो करना क्या है, x की जगह पे tx रखो, y की जगह पे ty रखो, z की जगह पे tz रखो, एंड सारे टर्म्स में आपको t कॉमन अगर मिल जाता है देन इट बिकम अ होमोजेनियस फंक्शन। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू टेक दैट t आउटसाइड टू दैट ऑल टर्म्स देन इट बिकम नॉन होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, एंड दिस ऑयलर्स थ्योरम इज एक्चुअली दिस ऑयलर्स थ्योरम इज there for both this function. Okay, so one theorem is for homogeneous function and one theorem is for non-homogeneous function. So I will explain both this theorem. तो पहले आपको क्या लर्न करना है, what is the Euler's theorem for homogeneous function. So Euler's theorem for homogeneous function. अगर आपका गिवन फंक्शन होमोजेनियस आता है तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो in this case let us assume that your given function, so let me consider only two variable function, 3 वेरिएबल का आप वैसे ही जनरलाइज कर सकते हो। सो लेट मी राइट फॉर सिंपल केस, लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन। ये आपका गिवन फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो ऑयलर्स थ्योरम में आप बस 2 ही स्पेसिफिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये पहले याद रखो। ऑयलर्स थ्योरम अगर आपके जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ऑयलर्स थ्योरम आता है, इसका मतलब वहाँ पे वो 2 स्पेशल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ आने वाले। ओके, सो यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओनली 2 specific type of partial differential equation. So let me write that first value. Can you tell me what is your first partial differential equation? x into du by X into du by w by x. x plus y into w by x. ठीक है, ये एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड दैट फंक्शन मस्ट बी होमोजेनियस। हाँ, नेक्स्ट इज व्हाट, x So equal to n z क्या हो रहा है, n z आएगा ना, n u आएगा ऊपर, nz So this formula is what, n into n u u. ठीक है। हाँ नेक्स्ट केस डेबा स्क्वायर यू बाय डेबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेबा स्क्वायर यू बाय डेबा एक्स डेबा वाई प्लस वाई स्क्वायर यू बाय डेबा जेड स्क्वायर। यस, व्हाट इज दिस, n into n minus 1 into u. ठीक है, ये था आपका पहला थ्योरम। आई थिंक ये सबको क्लियरली पता है। नाउ लेट मी राइट दिस थ्योरम फॉर, सर वो वहाँ पे y स्क्वायर आएगा ना नीचे लास्ट। अरे हाँ हाँ, यस, लेट मी करेक्ट इट। मुझे इरेज करना होगा, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे आता है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। हाँ, अभी लेट मी जस्ट टेक वन मोर पेज हियर। हाँ, एंड नाउ the second case, that is the Euler's theorem for non-homogeneous function. ठीक है, let me write the second case. Second case हम MCQs भी देखने क्विकली। Euler's theorem for non-homogeneous function। ठीक है, अभी ये टॉपिक कैसा होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में जनरली क्या होता है, आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन गिवन होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन लाइक से लेट u इज इक्वल टू, ये कुछ तो इनवर्स में रहेगा, f इनवर्स ऑफ सम फंक्शन, इस फॉर्म में फंक्शन जनरली रहता है आपको। ठीक है, सो लेट u इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ एक्स वाई बी। अब ये क्या चाहिए आपको, नॉन होमोजेनियस फंक्शन चाहिए क्योंकि गिवन फंक्शन आपका अभी होमोजेनियस नहीं है। ओके, सो लेट u इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y बी नॉन होमोजेनियस फंक्शन। तो इस टॉपिक में क्या होता है, गिवन फंक्शन आपको नॉन होमोजेनियस आता है, बट आप क्या करते हो, इफ आई शिफ्ट दिस f इनवर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन इट बिकम f ऑफ u। सो इफ f ऑफ u क्या होता है, f ऑफ u बस इनवर्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। इफ f ऑफ u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन यू कैन यूज द ऑयलर थ्योरम। सेकंड रिजल्ट समझ में आ रहा है, गिवन फंक्शन नॉन होमोजेनियस था,
बट वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में डिफाइन था. सो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट शिफ्ट दिस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इस टर्म की वजह से प्रॉब्लम थी. एफ इन्वर्स जो टर्म रहता है ना उसके वजह से ही होमोजेनियस फंक्शन आपको, नॉन होमोजेनियस फंक्शन आपको वो आ रहा था. ओके, सो आप क्या करो, एफ इन्वर्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, देन इट बिकम अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, एंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x ux प्लस y uy, बोलो क्या है? n into f of u upon f dash of u. वेरी गुड. ठीक है, एंड जस्ट फॉर राइटिंग पर्पज वी डिनोट दिस वैल्यू बाय g ऑफ u, एंड देयर इज वन मोर वैल्यू x स्क्वायर uxx प्लस 2xy uxy प्लस y स्क्वायर uyy. यस, g of u bracket g dash of u minus 1. ठीक है. तो अभी ये दो चीज़ आपको आई थिंक परफेक्ट समझ में आ रही है कि अगर होमोजेनियस है तो वो थ्योरम आएगा, नॉन होमोजेनियस है तो ये थ्योरम आएगा. आपने क्या मिस्टेक की है, एक मैं आपको वो बोलता हूँ. ठीक है, तो इसलिए मैं वो एक केस अभी स्पेशल ऐड करके दे रहा हूँ. ठीक है, नॉन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ स्पेशल टाइप, ऐसे में कुछ तो देने वाला हूँ. ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल से ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये इसमें आपने एमसीक्यूज में मिस्टेक की थी. अगर मैं आपको ये फंक्शन देता हूँ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई प्लस लेट मी जस्ट टेक इट दिस एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी आप जस्ट check this function carefully and tell me whether this function is homogeneous function or non homogeneous function. homogeneous है या non homogeneous है, आप बोलो. homogeneous tell me degree. जिसने homogeneous बोला आप वो डिग्री बोलो. जिसको non 1 e raised to 0 ये मतलब 1 ना, ऐसा बोलना है. What is degree of this? If it is homogeneous, then it must have a degree, na? So what is that degree? And degree is unique. You can't zero. 2 or more degrees. Degree is unique. So tell me its degree if it is homogeneous. 0. Sorry, what one answer is 0. तो अगर ये homogeneous function होता है डिग्री 0, अगर मैं ऐसे assume करता हूँ तो सारे टर्म्स की डिग्री क्या चाहिए? 0. 0. इसका 1 आ रहा है लास्ट का. Because if it is homogeneous, then it is homogeneous for all function. If it is homogeneous, then it is homogeneous for all function. Otherwise, it become non-homogeneous. Focus on my statement. अगर वो homogeneous है ना, तो सारे टर्म्स की डिग्री इक्वल चाहिए और सारे टर्म्स homogeneous चाहिए. फिर से सुनो, अगर वो homogeneous है ना, तो सारे टर्म्स की डिग्री इक्वल चाहिए एंड वो homogeneous भी चाहिए. homogeneous आता है तो ही डिग्री निकलती है. तो सारे टर्म्स आपके, सारे फंक्शन आपके homogeneous चाहिए एंड उसके बाद सारे टर्म्स की जो डिग्री है वो भी इक्वल चाहिए. अगर ये नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, देन इट बिकम नॉन होमोजेनियस. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट वन बाय वन. अभी बोलो फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? 3 1. ओके, ऊपर 4 आने वाला है t raised to 4, नीचे 1 आने वाला है, 4 minus 1 is 3. ओके, अब t यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ ये सारी चीजें मैं. ऊपर क्या बाहर आने वाला है? t raised to 4, नीचे क्या बाहर आने वाला है? t. तो कैंसिल होके मुझे क्या मिलेगा? t क्यूब. तो आंसर इज 3. व्हाट अबाउट दिस? डिग्री बोलो. 0 t नहीं रहेगा वहां पे. t is absent, then in degree is 0. what about this? 1. root of t square is 1. अभी डिग्री इक्वल है क्या? डिग्री इक्वल आती तो ही वो होमोजेनियस होगा. तो डिग्री है ही नहीं ना इक्वल. देयरफॉर दिस एग्जांपल इज व्हाट? दिस इज द नॉन होमोजेनियस. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में था. ओके, यहां तक ठीक है. अभी आप मुझे ये बोलो ये कौन से मेथड से होगा? फर्स्ट से मेथड से होगा या सेकंड मेथड से होगा? अभी सेकंड मेथड में क्या कंडीशन है? दिस मेथड इज ओनली फॉर सिंगल फंक्शन. ओनली फॉर सिंगल फंक्शन. नॉन होमोजेनियस है तो एक ही फंक्शन चाहिए, सिंगल, प्लस करके आगे के फंक्शन नहीं चाहिए. ओके, मल्टीपल फंक्शन के लिए ये मेथड है ही नहीं. दिस इज ओनली फॉर अ सिंगल नॉन होमोजेनियस फंक्शन. तो आपको इसको अभी किससे ट्राई करना होगा? फर्स्ट मेथड सेपरेट के लिए. तो अगर इस केस में, इन दिस केस if I tell you to find value of this first derivative like say x ux y uy, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्म वाइज ये फंक्शन होमोजेनियस तो आ रहा है, टर्म वाइज ये फंक्शन होमोजेनियस तो आ रहा है. तो आप क्या करो? टर्म वाइज ये रूल अप्लाई करो. मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो.
This u is non-homogeneous. This u is non-homogeneous, but term-wise this function is homogeneous. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, u क्यों why this u is non-homogeneous? क्योंकि डिग्री इक्वल नहीं है. अगर यहाँ पे डिग्री इक्वल आ जाती ना तो आई कैन डायरेक्टली से दैट u इज अ होमोजेनियस फंक्शन एंड डायरेक्टली मुझे एक ही स्टेप में आंसर मिल जाता. यहाँ पे कंडीशन आप देखो क्या है. ओके, तो इफ अगर मुझे इसको लिखना ही है तो नॉन होमोजेनियस इक्वल टू होमोजेनियस प्लस होमोजेनियस प्लस होमोजेनियस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज. ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको एट द एंड चाहिए एक्स यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू. ठीक है, अब ये डायरेक्टली यू कैनॉट राइट दिस एज ये तो रिजल्ट यूज होगा ही नहीं. दिस नॉन होमोजेनियस का रिजल्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगल फंक्शन के लिए होता है. अभी प्रीवियस रिजल्ट में क्या चाहिए आपको, वो होमोजेनियस फंक्शन चाहिए. तो अभी है ना ये फंक्शन आपका होमोजेनियस है, तो ट्रीट दिस फंक्शन इंडिपेंडेंटली. नाउ लेट अस राइट दिस वैल्यू, लेट अस राइट दिस सेम वैल्यू फॉर फर्स्ट फंक्शन. क्या आएगा बोलो. तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, बोलो. 3 into x square y square by x plus 1. Capital U. If I denote this function by capital U, if I denote this by capital V, and if I denote this by capital W. So this first capital U is a homogeneous function of degree 3. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 into U. करेक्ट है. 3u. हाँ, ऐसे आपको टर्म बाय करना होगा, टर्म बाय टर्म करना होगा. सेकंड की क्या आएगा, सेकंड Zero. आंसर 0 into V. थर्ड का आंसर क्या आएगा, 1 into W. तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 3U Plus W. W. बट 3 क्या है, u is this x square y square upon x plus y and w क्या है, अंडर रूट ऑफ x square plus y square. पण सर जर ते साइन इनवर्स वाला आहे ना ते नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस एक्सप्रेशन वाला असलं तर मग हे राहावं लागलं असतं आपल्याला मागे नॉन हे होमोजेनियस जर नॉन फंक्शन. होमोजेनियस आलं ना तर आपल्याकडे वेच नाहीये सॉल्व्ह करायचं. म्हणजे त्याला तुला तसं करावं लागेल, नॉन होमोजेनियसच्या याच्यामध्ये आणावं लागेल, पण तसे एक्झाम्पल येणारच नाहीये. ठीक है, हाँ आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि आपको अभी क्या, इफ वन ऑफ द फंक्शन इज नॉन होमोजेनियस फिर कैसे करोगे. ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको आने म्हणजे हाँ इनवर्स वाले जरी आले तरी ते फक्त 0 डिग्रीचे म्हणजे जिथे डिग्री 0 असेल तेच येते म्हणजे. कोणतेही फंक्शन इथे जे पण फंक्शन येतील ना, म्हणजे मल्टिपल जर असतील ना एकापेक्षा जास्त, ओके, अगर एक से ज्यादा फंक्शन वहाँ पे आ जाते हैं ना, वो सारे फंक्शन कंपल्सरी होमोजेनियस रहेंगे. फिर से सुनो, अगर एक से ज्यादा फंक्शन आते हैं ना, ओके, ऑल दोज फंक्शंस आर कंपल्सरी होमोजेनियस फंक्शन. बट प्रॉब्लम क्या होगी, हर एक की डिग्री अलग अलग होगी. डिग्री अगर सबकी इक्वल आ जाती है तो वो होमोजेनियस में आ जाता है ना, तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. ठीक है, हाँ, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑन दिस पार्ट. इस पे ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ था, तो जस्ट लेट मी, लास्ट 30 मिनट्स में हमें नेक्स्ट लेना है. तो ये क्लियर ही कर लेता हूँ मैं. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पूछता हूँ. अभी आप इसका आंसर आप दो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ. लेट मी राइट इट फर्स्ट. थोड़ा सेम फॉर्मेट में रखता हुआ. ये एक पहला फंक्शन है और मुझे दोनों वैल्यू चाहिए, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स, 2x वाई यू एक्स वाई, वाई स्क्वायर यू वाई वाई. और एक और मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, दैट विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स. u इज इक्वल टू, फंक्शन भी ख़त्म हो गए सारे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई देन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, थोड़ा और लेते हैं. इसमें ज़्यादातर पॉलिनोमियल जैसे ही आते हैं, इसमें भी क्या ऐड कर सकते हैं. हाँ, लेट इट भी ना, दो का ही रहने दो, ये ठीक है. ऐसे रख लेता हूँ, चलो जाने. ओके, जस्ट 1 मिनट. हाँ ना, और इसमें भी मुझे क्या चाहिए,
ओके नाउ चलो बोलो फर्स्ट का बोलो। अभी पहले मुझे आपसे ये आंसर चाहिए कि फर्स्ट होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? 2 4 आने वाला है और इसकी डिग्री क्या है? 2। तो अब ये क्या है, होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस? डिग्री इक्वल कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली बिकम होमोजेनियस। ये डायरेक्टली फर्स्ट केस में आ जाएगा। फर्स्ट केस में इफ इट इज होमोजेनियस फंक्शन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट वेरिएबल? बोलो। मतलब 2u और सेकंड की वैल्यू n into n minus 1 means what? 2 into 1 into u that is 2u। पहला समझ में आ गया क्वेश्चन? अभी कुछ डाउट है तो मतलब एक से ज्यादा भी टर्म्स आते हैं बट अगर वो होमोजेनियस है तो कुछ भी नहीं, मतलब इट्स बिकम मोर सिंपल। ठीक है, उसमें कुछ है ना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। हाँ, अभी लेट अस गो टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म की डिग्री बोलो। 4 6/2 है ना। नेक्स्ट टर्म की डिग्री बोलो 2। वेरी गुड। थर्ड टर्म की डिग्री बोलो 1 तो ये होमोजेनियस है क्या? हाँ, होमोजेनियस होगा ही नहीं है क्योंकि सबकी डिग्री अलग अलग है। सो इट इज अ नॉन होमोजेनियस फंक्शन। तो अगर ये केस आ जाती है ना तो टर्म वाइज होमोजेनियस का रिजल्ट अप्लाई करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे केसेस में टर्म वाइज होमोजेनियस के रिजल्ट्स अप्लाई करने हैं। अभी आप बोलो, टेल मी योर आंसर एंड लेट अस डिनोट दिस होल वैल्यू बाय कैपिटल यू। कैसे लिखो अभी यहाँ पे? लेट अस डिनोट इट बाय कैपिटल यू, लेट अस डिनोट दिस बाय कैपिटल वी, लेट अस डिनोट बाय कैपिटल डब्ल्यू। नाउ टेल मी, अभी आप बोलो। 4u plus 4u to v plus 1 plus 1w। Okay, what about this next? 12u plus 2v n into n minus 1. मैं बस this I will write this n into n minus 1 u, then n into n minus 1 v, और ये क्या होगा? 0 है ना, तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। ओके, अभी कुछ डाउट्स है ऑयलर्स में, इसके बाद कुछ नहीं है। बस आपको ये टॉपिक नहीं अच्छे से समझ में आ गया था तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट फ्यू स्टूडेंट्स नॉट एबल टू स्कोर इन दोज पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स। ओके, इज इट क्लियर नाउ? अभी ऑयलर क्लियर हो गया? इसके बाद इनके एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, कितने भी आप बस देख के इनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो वन क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन होमोजेनियस, सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन नॉन होमोजेनियस, बट नॉन होमोजेनियस के केस में वो सिंगल फंक्शन ही चाहिए। एंड थर्ड केस, okay, which is a non-homogeneous but it all terms are homogeneous. Okay, it is non-homogeneous but its all terms are homogeneous. That is all about the Euler's theorem. Okay, now let us quickly start the MCQs. ठीक है, और हमें ये MCQs कंप्लीट करके then we'll stop. So मे भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। Okay, या बोलो फर्स्ट का। y into x plus 2y रिस्पेक्ट टू x करना है। जब आप x करते हो y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट तो इसको 4 ट्रीट करो। सो वेयर आंसर इज x raised to n minus 1 है ना। सो ऑप्शन ए, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट, बोलो w by w r u is equal to r raised to n 3 cos square theta minus 1 is given। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r मींस थीटा कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट मतलब ये होल टर्म कांस्टेंट होगा है ना। तो क्या होगा आंसर? यानी r raised to n minus 1 3 cos square theta minus 1। So option A। चलो कम टू नेक्स्ट, u is equal to x raised to m y raised to n। क्या चाहिए? डेबा स्क्वायर u by डेबा x डेबा y। तो पहले आपको किससे डिफरेंशिएट करना है? y से। तो जब आप y से करते हो x कांस्टेंट होगा है ना, m into n, ये ऑप्शन x into y into n minus 1 and then differentiate this with respect to x। अभी मैं रिवर्स लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट अ वैलिड वे टू राइट। या सो आई थिंक दैट गिव्स मी m n x raised to m minus 1 y raised to n minus 1। so which option is correct? Okay, come to this, z equal to f of x y given है, then which of the following is correct? डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा x स्क्वायर इक्वल टू डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा y स्क्वायर। ये होता है क्या करेक्ट कभी? सर एक डाउट होता मागच्या प्रश्नामध्ये बोल ना। सर हे आता तुम्ही ना x च्या रिस्पेक्ट मध्ये जेव्हा सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करताय ना तेव्हा x raised to m plus 1 व्हायला पाहिजे ते ती व्हॅल्यू, नंतर मग डिफरेंशिएट होईल ना x raised to m plus 1 का होईल? सर ते x पुढे पण आहे ना एक n है, n y का डेरिवेटिव ना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अभी वो दिखने में आपको वैसे लग रहा है क्योंकि अभी ना ये वैक्यूम से लिख रहा हूँ ना तो इतने प्रॉपर नहीं आते वेरिएबल्स। या
तो ये n है, अभी मुझे वैसा ही होगा, ठीक है, ये n है, ठीक है क्या, हाँ। तो फॉर एनी z एक्चुअली ये भी इतना करेक्ट नहीं है, बट ठीक है, एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न वी कैन गो विद दिस। z इक्वल टू f ऑफ x y देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कभी होता है क्या ट्रू, x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कभी ट्रू नहीं होगा। दिस इज ट्रू ओनली फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो दैट मस्ट बी देयर, बट ठीक है, लेट इट बी, लेट अज्यूम ऑल आवर गिवन फंक्शंस टू बी कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एवरीथिंग, ओके। डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं आपको सिलेबस में, सो डोंट वरी, तो ओनली 2 इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट, u इक्वल टू एफ ऑफ z, u इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, है ना, z, एंड z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। बोलो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डैबा u बाय डैबा x, क्या लिखा है मैंने, du बाय dz, डैबा z बाय डैबा x, और डैबा u बाय डैबा y, विच ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं अभी आपको, हाँ, so be careful with this, yeah. So here u is a function of one variable, r is a function of 2 variable, क्या चाहिए, डैबा u by डैबा x चाहिए, so डैबा u by डैबा x, बोलो D option, f dash r, हाँ, so डैबा u by, सॉरी du by r, then चलो आपको पता ही है तो मैं जल्दी लिख लेता हूँ, डैबा r by डैबा x, du by dr, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू r इज f dash of r, r का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x y, 1/2 multiply by derivative of bracket term, so that gives me f dash of r into x upon this value। x upon r, ठीक है, ये सॉल्व किया तो इसलिए आपको जल्दी पता है, हाँ। तो अभी ये सॉल्व किया ना, विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, तो कुछ मतलब डायरेक्टली भी एप्लीकेशन y बाय r आएगा, z का z बाय r आएगा, तो फिर आगे का आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, हाँ। दिस इज द वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट क्वेश्चन। तो पहले मैं यहीं पे रिपीट करता हूँ दिस टॉपिक, वो सेल्फ स्टडी के लिए था इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर नहीं टाइम वेस्ट किया, बट लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन, या। तो इसका मीनिंग आपको मैंने क्लियरली लिख के दिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आपको करना है, डैबा बाय डैबा x, आपको क्या करना है, फाइंड इक्वेशन r and x, एंड y ओनली, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा वेरिएबल वहाँ पे नहीं चाहिए, अगर आ जाता है तो विच इज टोटली रॉन्ग। इन तीनों वेरिएबल में पहले आपको इक्वेशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही फिर ये जो दिया है उस हिसाब से आप जा सकते हो, मतलब क्या है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज कांस्टेंट, ओके। नाउ तो पहले देख लेते हैं r x एंड y में इक्वेशन है क्या, यहाँ पे क्या गिवन है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, क्या नहीं चाहिए आपको, theta, okay, so how you remove this theta from here, r square, squaring and adding, so that gives me x square plus y square equal to r square। now differentiate this with respect to x and y is constant, तो क्या मिलेगा, 2x, y constant है मतलब 0, r square का डेरिवेटिव 2r into डैबा r बाय डैबा x, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर आ रहा है ना, तो उसको फिर से x से भी डिफरेंशिएट करना होगा, ओके। दैट गिव्स मी डैबा r बाय डैबा x इज इक्वल टू x बाय r, ये प्रीवियस ही टॉपिक है जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना होगा, चलो ठीक है, थीटा को अगर r को एलिमिनेट करना है तो क्या होगा, हाउ यू एलिमिनेट r, डिवाइड कर दिया, तो यही तो पॉसिबिलिटी है, ओके, या सेम। तो पहले डैबा u बाय डैबा y भी है, ओके। सो फर्स्ट आई वांट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ u, y एंड v, देन ओनली आई कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y एंड v इज कांस्टेंट। तो है क्या आपके पास वो इक्वेशन, u में, y में और v में, u y v already given है, so use that, y square minus x square is equal to u square, and then differentiate with respect to what, y and which constant, and v is constant, बोलो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ना, yes, एंड v कांस्टेंट है मतलब sec v कांस्टेंट है, तो वैसे ही रहेगा वो, एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज व्हाट, डैबा u बाय डैबा y, so डैबा u बाय
डैबा वाई इज व्हाट 1 अपॉन सेक वी, दैट इज कॉस वी। अगर नहीं है बट ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट के? Yes, sir. ओके हाँ, अभी आप बोलो, अभी पता है सबको डैबा यू बाय, चलो अच्छे हो ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, u by y with respect to x। so first I want an equation in terms of u, x and y। और बोलो कैसे निकालो, मैं इक्वेशन दे देता हूँ, Adding both equations. and y square equal to au minus vv। so I don't want v, it means you have to add this two equations। so if I add this two equation I will get x square plus y square is equal to 2 times au। then I have to differentiate this with respect to y, and your x is constant, Y by yeah, so 2y dabba y, sorry 2y only is equal to 2a dabba u by dabba y, that gives me dabba u by dabba y is equal to y upon a। so option C is correct। next lecture किसका है आपका? next lecture is it off? ऑफ झाला आहे. हाँ कुछ तो मैं शायद मैम को कुछ तो मीटिंग है। ओके सो मे बी आई विल जस्ट कंटिन्यू ओनली फॉर 5 और 6 मिनट्स, ज़्यादा भी नहीं लूँगा एक्स्ट्रा, डोंट वरी। या बट ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरी क्वेश्चन बैंक, ये आपसे मैंने शेयर नहीं किया। ओके सो जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट डैबा जेड बाय डैबा एक्स। अभी यहाँ पे ना इसको कैसे ट्रीट करना आप देखो, ऊपर जेड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जेड इज दी डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपने एक बार एक्स से किया है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, दिस एक्स एंड वाई मस्ट बी इंडिपेंडेंट। एक बार डैबा आया है ना तो मतलब ये इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो अदर चॉइस क्या होगी, वाई। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? Yes. यहाँ से मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, दिस आई आइडेंटिफाइड डायरेक्टली फ्रॉम अ क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर ये नहीं होता तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। अगर उन्होंने पूछा कि डैबा जेड बाय डैबा एक्स कैलकुलेट करो, मतलब मेरा z डिपेंडेंट है, ओके, और डैबा आ रहा है और सॉरी z डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, ये दोनों मुझे पता है डायरेक्टली, बट वहाँ पे डैबा आ रहा है मतलब एक और इंडिपेंडेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली दैट सेकंड चॉइस इज व्हाट y। सो एट द एंड z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ये होता है लॉजिक। एंड नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या कॉन्स्टेंट करना है, y को आपको कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x and your y is constant, so that gives me, बोलो 2z dabba z by dabba x डैबा z बाय डैबा x माइनस, अब ये दोनों वेरिएबल है ना क्योंकि y कांस्टेंट, y है ही नहीं वहाँ पे। सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dabba z by dabba x तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 हो गया, y का कांस्टेंट है 0 एंड इक्वल टू 0 हो गया। सो अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डैबा जेड बाय डैबा एक्स फ्रॉम हियर, ये जाएगा आगे हो जाएगा माइनस जेड, नीचे 2z माइनस, ये 2z कैसे आ रहा है, जेड क्यूब होगा शायद यहाँ पे ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, तो ही 3 आने वाला है, तो यहाँ पे 3z स्क्वायर होगा। सो 3z स्क्वायर माइनस एक्स, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ना, हे कारण हे प्लस जेड आहे ना, हे पुढे जाणारच आहे ना, ब्रॅकेट प्लस Okay, होईल हाँ, sorry, ना sorry, हाँ, ये ब्रैकेट में डाला है ना मैंने, ओके। सो आई थिंक दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी हाँ वो ब्रैकेट नहीं देखा मैंने, या सो इट इज ऑलरेडी इन ब्रैकेट, सो ऑलरेडी इट हैज अ माइनस साइन, तो आगे जाके प्लस होगा, देन इट गिव्स मी z अपॉन 3z स्क्वायर माइनस x, ओके। या तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, सेम इक्वेशन होगा डैबा जेड बाय डैबा वाई, तो भी आप करके रखो, वो भी क्वेश्चन मतलब इस पे 2 ही पॉसिबल क्वेश्चन है, डैबा जेड बाय डैबा एक्स एंड डैबा जेड बाय डैबा वाई। तो एक क्वेश्चन से मतलब एक मैं बोलता हूँ ना तो नेक्स्ट भी आप मैं बोल रहा हूँ, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो दिस आर द ओनली पॉसिबिलिटीज टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन। या नाउ कम टू दिस, x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू सम कांस्टेंट, कैलकुलेट डैबा z बाय डैबा y, बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y and which is constant, x ठीक है। तो क्या आएगा आंसर,
0 plus Differentiate with respect to y. First function derivative of second plus second into derivative of first plus first function derivative of second into what? Dabba z by dabba y plus second into derivative of first which is again dabba z by dabba y. Is this clear? मैं क्विकली कर रहा हूँ बट आप लॉजिक देखो, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है ना तो उसको फिर से उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, इतना ही लॉजिक है इसमें. एंड नाउ इट गिव्स मी सी ऑप्शन है ना, ओके मैं कर लेता हूँ. 1 प्लस लॉग वाई यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और ये अगर मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ तो एक माइनस भी आने वाला है, ओके, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 प्लस लॉग वैल्यू ऑफ डैबा जेड बाय डैबा वाई, ठीक है. Yes. Now let's do it this. I will extend for 2-3 minutes क्योंकि these MCQs are important. Yeah. बोलो. U is equal to log of x square plus y square. पहले मुझे किससे डिफरेंशिएट करना होगा? y से करो. क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विच इज 2y. अभी मुझे करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x से. हाँ, तो विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करो सेम टर्म को. अभी विद रिस्पेक्ट टू x करते समय 2y तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये बेसिकली क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? -1 by x square 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या है 2x. अभी जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है यू कैन गो विद u by v रूल. v स्क्वायर v इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. यू कैन गो विद u by v रूल. इट डिपेंड ऑन you कि आपको कैसे करना है. -4xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है. विच ऑप्शन इज करेक्ट? यही ना. नेक्स्ट u is equal to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेस टू m. चाहिए क्या आपको? डैबा u बाई डैबा z, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z. सो विच आर कांस्टेंट? x एंड y कांस्टेंट. सी ऑप्शन. ओके, मतलब डायरेक्ट ही है ना, मैं लिख लेता हूँ फिर भी कैसे आ रहा है. वेरी गुड. सो डैबा u बाय डैबा z डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z. तो ये पहले x रेस टू m जैसा है, सो m x रेस टू m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म. तो पहले रूट आ रहा है तो रूट की वजह से नीचे जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म. तो क्या है विद रिस्पेक्ट टू z, टू z आएगा. इज दिस करेक्ट? Yes. 2 कैंसिल होगा, सो यू विल गेट mz, ठीक है. अभी ये सेम ही है, m -1 अपॉन दिस, ये ऊपर शिफ्ट होता है तो क्या मिलेगा -1. सो क्या लिखना है मुझे यहाँ पे पावर में? -2. ये ऑलरेडी नीचे ना ऊपर जाता तो -1 होगा, सो m -1 दैट गिव्स मी -2. सो mz ऑफ दिस इनटू m -2, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको बस डेरिवेटिव का प्रॉपर नॉलेज चाहिए. तो जो मुझे लग रहा है, दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है. या सो z क्या गिवन है? z x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डैबा जेड बाय डैबा एक्स एंड डैबा जेड बाय डैबा वाई. चलो ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो. या ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ मैं. Now let us calculate dabba z by dabba x. क्या आएगा? v स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज 2x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1. लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन. सो दिस गिव्स मी 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर upon x plus y whole square, that is x square minus y square plus 2xy upon x plus y whole square. कौन सा मैच हो रहा है क्या ये? नो ना? No sir. हाँ, तो ये रॉन्ग है. अभी विद रिस्पेक्ट टू y करते हो तो आप चेक करो क्या आता है और मुझे डायरेक्ट बोलो. ये भी रॉन्ग आ रहा है. विद रिस्पेक्ट टू y करो
अभी करना ही होगा तो कितने, लेट मी डू इट. सो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हो तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y इज 1. तो क्या मिलेगा ऊपर फाइनली, डायरेक्ट करते हैं ना, 2xy आ रहा है प्लस, मैच हो रहा है. देन 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकम प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. अब ये तो मैच हो रहा है, क्या हो रहा है ना. सो दिस इज करेक्ट. सो ओनली, तो ये Sir. आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है. हाँ बोलो. तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिमेट्री फंक्शन है तो डायरेक्टली ऊपर लिख जैसे. सकते हो, लिख सकते हो. यस यस ओके. हाँ, अदर स्टूडेंट्स यू नो अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन. Yes, sir. टू एक्स वाई, इसको आप सिमेट्रिक का बोलते हो, इज सेड टू बी सिमेट्रिक. बोलो. इफ वी एक्सचेंज एक्स एंड वाई. रिप्लेस वाई एक्स अगर आप एक्स एंड वाई का रोल इंटरचेंज करते हो तो आपको फिर से वही मिलना चाहिए. ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स. यहाँ पे देखो, एक्स की जगह पे वाई रखो, वाई की जगह पे एक्स रखो, फिर से वही मिलता है. देन यहाँ से भी आप लिख सकते थे डायरेक्टली. दैट इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो आई रियली लाइक दिस. यहाँ से भी लिख सकते थे, मतलब इट सेव्स योर टाइम, है ना. पूरा ये करने की जरूरत नहीं थी. वेरी गुड. तो ये रिजल्ट आप याद रखो, मैंने ऊपर दे दिया है ना. सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, एक्स की जगह पे वाई रखो, वाई की जगह पे एक्स रखो. इफ यू गेट दैट सेम इक्वेशन अगेन देन इट बिकम सिमेट्रिक. तो उसमें अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो वाई का समझ में आता है, जेड का भी समझ में आता है. वेरी गुड. या कम टू दिस नाउ. u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई. चाहिए आपको डाबा यू बाय डाबा एक्स. ठीक है, सो डायरेक्टली कर लेते हैं डाबा यू बाय डाबा एक्स. इसमें सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता था, बट देखते हैं कि क्या ऑप्शन करेक्ट है. Option D. हाँ, तो आई थिंक वो सिंप्लीफिकेशन करके ही जाते हैं, मुझे लग रहा है वो. ओनली हाँ, उन्होंने किया है सिंप्लीफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x. डी Direct and D. डायरेक्ट ही दिया है क्या. चलो, सो फिर कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं. सो करेक्ट है, ये डायरेक्ट ही दिया है उन्होंने. नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो विच इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. मैच हो रहा है क्या. D. Yes. Sign change. हाँ, नहीं मैच हो रहा है ना, तो ये करेक्ट है या नहीं, रॉन्ग है ना. हाँ, Sign से रखते हैं. हाँ, तो अभी इसको एडजस्ट करना होगा. मैं क्योंकि इस ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या एडजस्टमेंट हो सकती है आप पहले बोलो. लॉग के अंदर मुझे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है. सो कैन यू जस्ट गेस दैट एडजस्टमेंट. एक्स सर वाई एक्स वाई कॉमन है तो क्यूब बाय स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना. सो इफ आई टेक दैट एक्स स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज इन ब्रैकेट एक्स माइनस. एक्स माइनस इफ आई टेक एक मिनट, हाँ, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द रिमेनिंग टर्म्स, क्या आएगा फिर ब्रैकेट में, क्या आएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस वाई X minus Y. प्लस वाई स्क्वायर लेते हो तो फिर जैसे वैसे लिखना होगा. और प्लस वाई स्क्वायर लेते हो तो वाई माइनस एक्स आ गया. मैंने माइनस किया है सो दैट आई विल गेट दैट सेम फंक्शन. या नाउ लॉग, अभी क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट एक्स X minus Y. X plus Y. हाँ करेक्ट, एक्स प्लस वाई कॉमन x minus y, है ना. So it is finally become log of what X minus Y square एक्स माइनस वाई स्क्वायर x plus y. but log की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई this is log of x minus y square Plus log X plus Y. x plus y. but ये भी log की प्रॉपर्टी से आगे आता है. so finally you here you will get 2 times log of x minus y plus log of x plus y. This is just the simplification. Now you differentiate u with respect to x and tell me that 2 upon x minus y पहले का डेरिवेटिव
एंड फर्स्ट का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, करेक्ट है ये? Yes, sir. यस सर. ठीक है, तो इसे डायरेक्टली आप देख के ट्रिक मत करो, मतलब ये आपको पता ना, जस्ट फॉर कंफ्यूजन ऐसे ऑप्शन वहां पे रहेंगे, ठीक है? या यस, व्हाट अबाउट दिस? नेक्स्ट लेक्चर ऑफ है ना 100%, क्योंकि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ जब Yes, sir. हार्डली 4-5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. या सो x इज इक्वल टू e रेज टू u tan v, y इज इक्वल टू e रेज टू u sec v, और z भी दिया है. ओके, z इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2u f ऑफ v. चाहिए क्या? ये चाहिए. हाँ, क्या चाहिए मैं लिख लेता हूँ. क्या चाहिए आपको? x zx प्लस y z y. ओके, अभी आप थॉट देखो क्या चाहिए पहले. अगर ये क्वेश्चन मुझे ऑयलर्स थ्योरम से करना है, सो व्हाट आई वांट दैट z In terms of एक तो होमोजेनियस चाहिए, या तो वो डायरेक्टली नॉन होमोजेनियस चाहिए. देखते हैं अभी क्या है. अभी ये z क्या है, होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस? क्या लग रहा है आपको? अभी ये तो जस्ट ओके, कैन आई यूज दिस z? ये z यूज कर सकता हूँ क्या मैं ऑयलर्स थ्योरम के लिए? नो. क्यों? no, व्हाट इज द रीजन? FPC डिग्री पता नहीं. नहीं. यूवी के टर्म्स है, एक्स वाई के चाहिए. वेरी गुड. ओके, दिस इज द बेस्ट ऑब्जर्वेशन. ये चीज़ें ना समझ में आनी चाहिए आपको. यहाँ पे जब मैंने लिखा था ना एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई लिखा है, तो अगर मुझे ऑयलर्स थ्योरम से जाना है ना, तो दैट जेड मस्ट बी व्हाट? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. और उसके बाद मैं होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस चेक कर सकता हूँ. करेक्ट, समझ में आ रहा है सबको ये पार्ट? अगर ऑयलर्स थ्योरम से जाना है तो ये दैट जेड मस्ट बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तभी वो जेड एक्स जेड वाई डिफाइन होंगे ना. बट राइट नाउ दिस जेड इज फंक्शन ऑफ यू एंड वी, तो डायरेक्टली कैन नॉट अप्लाई दिस ऑयलर्स थ्योरम फॉर दिस टू फंक्शन, क्योंकि आप x इक्वल टू टी एक्स पुट करने वाले हो होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस चेक करने के लिए. आप y इक्वल टू टी वाई पुट करने वाले हो, बट अभी x एंड y है ही नहीं. तो मुझे पहले क्या करना होगा? मुझे इस फंक्शन को x एंड y में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे चाहिए u की वैल्यू और चाहिए v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ? फर्स्ट आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ u, मतलब u की जगह पे x एंड y का चाहिए ना. सो फर्स्ट आई वांट u इन टर्म्स ऑफ x एंड y. मुझे u की जगह पे x y का टर्म लिखना है. सो आई हैव टू रिप्लेस u बाय फंक्शन ऑफ x एंड y. मतलब क्या एलिमिनेट करना है? इन दोनों इक्वेशन से क्या एलिमिनेट करना है? v. ये सबको समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो आप मुझे बोलो ना. वैसे अप्रोच देखो, मुझे ये ऑयलर्स थ्योरम से करना था, ओके, बट ये x जेड एक्स वाई जेड वाई, मतलब मुझे जेड एफ ऑफ एक्स वाई में चाहिए, ओके, पर यहाँ पे जेड यू एंड वी में, तो मुझे u को x एंड y में लेके जाना होगा, v को x एंड y में लेके जाना होगा. u को x एंड y में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे v को एलिमिनेट करना है. नाउ टेल मी हाउ यू एलिमिनेट दिस. स्क्वायर. हाँ, क्योंकि Square करके subtract y square व्हाट इज द रिजल्ट इन बिटवीन sec एंड tan? x square minus tan square. So y square minus x square is equal to क्या लिखना होगा मुझे डायरेक्टली? e raised to ओके, क्योंकि x square minus tan square is 1. वेरी गुड, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो ये रिप्लेस हो जाएगा डायरेक्टली. ठीक है. हाँ, अभी सेकंड मुझे क्या करना है? मुझे v इन टर्म्स ऑफ x एंड y चाहिए. सो आई डोंट वांट u नाउ, सो आई हैव टू एलिमिनेट u. बोलो कैसे? डिवाइड, दैट इज द सिंपलेस्ट वे ना. डिवाइड हो जाएगा. तो किसको कैसे करा भी देख लेते हैं. x बाय वाई साइन, ये ऐसे आएगा ना? करेक्ट है? करेक्ट है क्या? हाँ. सो व्हाट इज v फ्रॉम? ये साइन tan अपॉन sec बिकम साइन ना. हाँ, तो व्हाट इज v फ्रॉम दिस? sin और x upon y. x बाय वाई. अभी लिख लेते हैं अपना वो फंक्शन. ओके, तो फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे? नाउ लेट मी राइट आवर फंक्शन. z इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2u. e रेज टू 2u की वैल्यू ये है, तो e रेज टू माइनस 2u की वैल्यू क्या आएगी? 1 upon y square minus. वेरी गुड, 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू f ऑफ v. v की वैल्यू क्या है? Sin inverse x upon y. y x by y, sorry, let me erase x by y, ब्रैकेट कंप्लीट.
अभी आप बोलो नाउ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, आप चेक करो, डिग्री चेक करो, मुझे डिग्री बोलना है। क्या डिग्री है? -2 पे टी एक्स -2 टी वाई, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे टी स्क्वायर आएगा, तो एट द एंड z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -2। ठीक है, तो वो -2 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2z u मतलब z है ना, यहाँ पे z में दिया है, सो -2z इज द आंसर। ओके, इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया है? अभी भी इसमें कुछ डाउट है बोलो। इज दिस क्लियर नाउ? या z इज अ होमोजेनियस फंक्शन। अभी ये 1 1 मार्क के बोलो जल्दी जल्दी। होमोजेनियस फंक्शन है तो n इंटू n माइनस 1 यहाँ पे एक ही फंक्शन है और वो tan इनवर्स में, तो ये नॉन होमोजेनियस का ही होगा। सो z इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x क्यूब y क्यूब अपॉन x माइनस वाई। सो दिस इज द नॉन होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो आप नॉन होमोजेनियस क्यों लिखा है मैंने डायरेक्टली? क्योंकि tan इनवर्स के बाहर t आ ही नहीं सकता ना। सो डायरेक्टली मैंने इसको क्या लिखा है? इट्स अ नॉन होमोजेनियस फंक्शन। अभी t तो कैंसिल हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, तो sin 2z हाँ ठीक है, तो ठीक है आपने किया है। तो मुझे क्या करना होगा? tan z को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा। ओके, एंड आई हैव टू कॉल दिस एज माय f ऑफ u एंड व्हिच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस वाई। नाउ दिस बिकम होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट? 2। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या चाहिए था? हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? n into f of u upon f dash of u, but n is 2, f of u is tan z है ना। हाँ, नीचे डेरिवेटिव क्या है? sec square z स्क्वायर z, ये u में लिखा है बट ये z में होता है, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ, एंड नाउ 2 sin z अपॉन ये क्या आ जाएगा? आई थिंक ये आ जाएगा sin z into cos z। यू कैन डू दिस। ओके, एंड दैट इज sin 2z। ओके, वेरी गुड। हाँ, इसमें बोलो। अब ये सिंगल फंक्शन है तो ये डायरेक्टली भी आप अभी कर सकते हो, ये नॉन होमोजेनियस ही होगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये होगा नॉन होमोजेनियस। मुझे इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना होगा, मुझे साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा, देन दैट गिव्स मी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, एंड दिस इज नाउ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ विच डिग्री? 1/2 तो आंसर क्या आएगा इसका? अभी यहाँ पे जी ऑफ यू कैलकुलेट करना होगा ना। इट इज़ आई थिंक जी ऑफ यू इन ब्रैकेट जी डैश ऑफ यू माइनस 1। तो जी ऑफ यू क्या होता है? n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, बट n था आपका 1/2, एफ ऑफ यू था आपका साइन यू, नीचे उसका डेरिवेटिव, दैट गिव्स मी 1/2 tan u। सो इट इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 tan u as it is ना, in bracket its derivative, what is that? 1/2 हाँ sec square u minus 1 है ना। थोड़ा भी इसको सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि आंसर वैसे नहीं दिखाई दे रहा है, सो सारे tan में दिखाई दे रहे हैं। सो 1/2 tan u, 1/2, what is the replacement for sec square u? 1 plus tan square u 1 plus tan square u and minus 1। ठीक है, नाउ यू कैन डू दिस। 1/2 tan u ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 tan square u माइनस 1। अब इसके आगे डायरेक्टली आप टिक करो तो ये 1/2 बाहर आ सकता, मतलब 1/2 माइनस 1 ये आ जाएगा आपका माइनस 1/2। दैट 1/2 यू कैन टेक आउटसाइड, इट बिकम 1/4। सो 1/4 tan u इन ब्रैकेट व्हाट? tan square u। कुछ तो रह गया क्या इसमें? करेक्ट है ना? हाँ, अंदर tan u को करेक्ट है, tan क्यूब माइनस 1। हाँ, सो अभी जगह ज़्यादा नहीं है, लेट मी राइट इट हियर। या सो एक लिख लेता हूँ प्रॉपर, जाने दो टाइम। सो tan u दिस गिव्स मी 1/2 tan square u minus 1/2, 1 minus this, okay? And if I take इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। सो 1/4 tan cube u minus 1/4 tan u. If I take 1/4 common in bracket, you will get tan cube minus tan. So which option is correct? C ठीक है, तो ये भी 2-3 मार्क्स का वेटेज का होगा।
मे बी 3 मार्क्स का वेटेज का होगा, ठीक है, ज़्यादा वेटेज का होगा। जितना जितना ज़्यादा कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से आप खुद गेस कर सकते हो, है ना। या ये इट्स जस्ट अ फॉर्मूला। बोलो, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, सेम वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, ये तो होगा ही नहीं, du बाई dt कैलकुलेट होगा। सो du बाई dt में u टू x पार्शियल आता है, तो ये भी रॉन्ग है। हाँ, बी ऑप्शन। ये ऑप्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक फंक्शन का लॉजिक यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ये शायद आपने लर्न किया है मुझे लग रहा है। u इक्वल टू एफ ऑफ आर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट का, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ जो पहले था। और अब मुझे चाहिए यू एक्स एक्स, यू वाई वाई, यू जेड जेड की वैल्यू। तो पहले इसको क्या करते, यू एक्स कैलकुलेट करते। ओके, क्या आएगा फॉर्मूला यू एक्स का? del u by del x. यहाँ पे अगर ट्री डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, u इज अ फंक्शन ऑफ r इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। तो पहले मुझे लिखना होगा du का विद रिस्पेक्ट टू r, ये किया है, एंड r का विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का विद रिस्पेक्ट टू r इज f डैश ऑफ r, डैब r बाय डैब x मैंने बहुत बार कैलकुलेट करके दिया, दैट इज x बाय r, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। फिर से एक बार मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो, तो क्या लिखना है, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x बाय r का डेरिवेटिव क्या आएगा, v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 1 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज डैब r बाय डैब x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सॉरी प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या आएगा ये, f डबल डैश ऑफ r इंटू वॉट, ये शायद आपने किया है ना थियरी में, ये किया है ना। Yes sir. ये चीज़ें आपको पता चल रही होगी कि एफ डैश ऑफ आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आता है एफ डबल डैश ऑफ आर, बट वो आर में फंक्शन है, तो फिर से आपको आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा, क्योंकि आर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश ऑफ आर, दिस इज आर माइनस डैब आर बाय डैब एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर है, तो आर माइनस स्क्वायर आपको आर एक्स बार आर पुट करके नीचे आर स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, ये डैब आर बाय डैब एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर है, तो X square by R square. एफ डबल डैश ऑफ आर। सो फाइनली पूरा सिंप्लीफाई होके क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आर क्यूब जाएगा नीचे, है ना। तो क्या लिखूँ आप बोलो, एफ डैश ऑफ आर ब्रैकेट व्हाट, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आर क्यूब प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यह आपने बस यू एक्स एक्स का किया है, ये भी 3 मार्क के लिए होगा। अभी आप सिमिलरली यू वाई वाई का लिख सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स लिखने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तीनों का सिंप्लीफिकेशन करो, ऐड करो, देन टेल मी दिस फाइनल आंसर। बोलो, तीनों का सिंप्लीफाई मतलब तीनों का लिखो। अभी तीनों का लिखते समय तीनों में ये पार्ट तो कॉमन आने वाला है, ठीक है, एफ डैश ऑफ आर कॉमन आने वाला है तीनों में। अभी तीनों में ये यहाँ फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, थर्ड में यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, बट तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एम आई करेक्ट, माइनस क्या होगा, फर्स्ट का एक्स स्क्वायर, सेकंड का वाई स्क्वायर, थर्ड का जेड स्क्वायर, और नीचे भी ये सेम रहेगा, बेस सेम है। मैंने करेक्ट लिखा है ये, इट इज देयर इन द पीपीटी आल्सो, सो ज़्यादा हमें इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर सब में से कॉमन आएगा, फर्स्ट का क्या है एक्स स्क्वायर, सेकंड का क्या है वाई स्क्वायर, थर्ड का क्या है जेड स्क्वायर, बेस सेम है। सो कैन यू टेल मी फाइनल आंसर, एफ डैश ऑफ आर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है ना, तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज 2 अपॉन आर प्लस ये होगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ आर। ओके, ये आपको M3 में चाहिए, ये फॉर्मूला ही है। सो एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2 बाय आर इंटू एफ डैश ऑफ आर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यही है ना, बी ऑप्शन, ठीक है। सो ये लेंथी क्वेश्चन है, बट इसमें सिमेट्रिकल लॉजिक यूज करना है, और आप बहुत इसके लिए पीपीटी रेफर करो, बट रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। या कितने रह गए,
हार्डली 2-3 क्वेश्चंस। ओके, बोलो क्या चाहिए y का t, क्या दिया उन्होंने, x इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, बेसिकली x एंड y आर द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। ओके, r एंड थीटा आर द फंक्शन ऑफ t, ऐसा है, x एंड y फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, r एंड थीटा आर द फंक्शन ऑफ t। मुझे चाहिए dy बाई dt, बोलो फॉर्मूला बोलो, y से t तक जाना है मुझे, y से t तक जाना है, टेल मी। del y by del y by डेबा r, देन r विद रिस्पेक्ट टू t, ये था फर्स्ट, डेबा y बाय डेबा थीटा, देन थीटा विद रिस्पेक्ट टू, अभी बस कैलकुलेट करो जो जो गिवन है। y का विद रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा, थीटा है ना, dr बाई dt क्या है, dr बाई dt वैसे ही रखना है कुछ वैसे हाँ, प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा r cos थीटा and डेबा थीटा, sorry d theta by dt as it is. So which option is correct? A. Okay. Next, u is equal to, ये लिख ट्री से ही जल्दी समझ में आता है, u is a function of x and y, x is a function of r and t, y is a function of r and t. Okay, चाहिए क्या, डेबा u by डेबा t, tell me the formula, डेबा u by डेबा t, t तक u जाए, by Dabba x. Dabba x Dabba x by dabba t. u to y Y to t. t, put all these values, u to x, 2x ना, 2x हाँ, x to t क्या आएगा, 3 2y to t minus 1, so 6x minus 2y. C. yeah Last question, z is the function of u and v, u is a function of x and y, v is a function of x and y, मुझे क्या चाहिए, डेबा z बाई डेबा x, बोलो, z to u, u to x, U to x. z to v, V to v to x, हाँ। सो z का विद रिस्पेक्ट टू u वैसे ही रखना होगा क्योंकि z इज नॉट गिवन, u का विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x, z का विद रिस्पेक्ट टू v वैसे ही रखना होगा, v का विद रिस्पेक्ट टू x इज 2y. So which option is correct? ठीक है, तो मैंने क्विकली लिया है बिकॉज दिस टॉपिक इज ऑलरेडी ओवर, एमसीक्यू प्रैक्टिस की भी हो गई है, एंड आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो, ठीक है, बट अभी मुझे लग रहा है कि दिस प्रैक्टिस इज इनफ फॉर दिस यूनिट 1। इतना अगर आप करते हो तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।